Hello everyone and wishing you all a very happy 74th Independence Day. So as today is a special day, so is our Chit Chat show. And we have got two special celebrities. And as you all know, this Chit Chat is organized by Dream Chaser Media Production and supported by Swad Hindustan Ka. So on our guest list today is somebody who has choreographed Prabhu Deva. Well, yes, you have heard me right. और इतना ही नहीं, he has got some special connection with the खिलाड़ी कुमार of Bollywood. Well, वो connection क्या है? We need to know from him himself, and for that we need to invite him online or get to know more about him. So let's just invite Inder Sharma online और जानते हैं इनकी जिंदगी और इनकी journey के बारे में. Yes, so hi Avi, hi Sami, thanks for joining. I just hope that Inder ji joins us soon. And as you all know, he has choreographed many of the award shows. And recently उनका एक album निकला है जिसमें उन्होंने गाया भी है, डांस भी किया है, and amazing it is. It has already hit more than 1 lakh views in just 1 month. And the title of that track is Badmaash. So let's see what he has to tell about his journey. And I just hope that he comes online soon, because we have been waiting for him, and there was some internet issues earlier. I hope it got solved now. So hello Inder, where are you? We all are looking for you. So apart from that, yes, hi Samir, you have just given me a wave, so hello to you. We hope that you're there. Oh, he hasn't been there, so I think okay, now Inder has joined. Wait is over. Okay, so hopefully he'll be with us in some moments. Yes, he's there. Hi, how are you? I'm Hi, good. How are you? I'm good. So, what's up? Yes, all well, apart from these rains in Mumbai. Okay, yeah. मेरी आवाज आ रही है क्लियर आपको? बिल्कुल आ रही है और बहुत क्लियर आ रही है. We all have been waiting, Okay. for the excitement. आपने सबसे पहले तो I want to tell you what a transformation. I saw your earlier videos and I saw this video. तो आपने जो गजब का जिसे बोलते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन किया है, वो कैसे किया? और आई एम श्योर कि जितने भी फिटनेस फ्रीक्स हैं अभी आपसे टिप्स लेने के लिए आपके पास आते होंगे, और probably they would be asking you for all the right tips. कैसे, it's like the body that you have now created, that's what I would say, because कितने दिन आपने नमक नहीं खाया ये बताइए. ये तो मेरा करीबन ये 8 महीने का मेरा जो ये उपवास था, व्रत था मेरा. And it was like I was like very strictly on this diet and all. I was on low carbs में था. And जो तरीके से we can't eat oily things. और कभी फ्रेंड्स के साथ बाहर चले जाओ तो रेस्टोरेंट में they are eating butter chicken and all, so we have to just see okay आप लोग ये खा रहे हो so काफी मन मार के बट फाइनली वॉट एवर जो भी किया तो उसका रिजल्ट मिला मुझे. एंड यस दैट्स ट्रू कि काफ़ी फिटनेस फ्रीक काफ़ी लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं ऑन फेसबुक एंड ऑन दिस इंस्टा राइट गाइडेंस के लिए. सो आई एम वेरी प्राउड कि choreographer, singer, and this fitness and like audience are accepting me like in everything. So I'm feeling like blessed. I'm blessed. In this Definitely, it's amazing. 8 months, if somebody tells me to keep fasting is very difficult. और fasting तो नहीं, आप जैसे आपने low carbs बोल रहे हैं, आपने बहुत obviously fitness is not that easy लोगों को लगता है, but apart from exercise, diet, everything matters. और एक proper routine होना चाहिए उसके लिए. You cannot skip that routine. And discipline very important. Yes, very important. सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना, सही टाइम पे एक्सरसाइज करना और राइट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज करना और खाना. सो ये डिसिप्लिन 8 मंथ्स के लिए इट्स नॉट दैट एन इजी टास्क. सो डेफिनेटली कुडोस टू यू जो आपने जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की है. एंड इट लुक्स लाइक किसी ने कार्व कर दी
है आपकी बॉडी. yes, yes, या yes. ग्रेट. तो कितने तो कितने पैक्स बना लिए आपने 8 मंथ्स की मेहनत के बाद? नहीं, जो मुझे परफेक्टली द बॉडी आई वाज लुकिंग फॉर दिस बदमाश, सो मैंने वो अचीव किया. एंड लास्ट 3 days तो काफ़ी बहुत ही स्ट्रेसफुल था, बिकॉज लास्ट 3 days मैंने अपना वाटर भी कम कर दिया था. एंड द डे ऑफ द शूट मैं मैंने पानी ही नहीं पिया था. एंड जो शूटिंग था हमारा, लाइक पूरे नाइट शूटिंग चला था, लाइक 8 बजे से नेक्स्ट डे 8 बजे तक, मॉर्निंग 8 o'clock टिल. How तो did you नाइट do में आई that? वॉज Because dancing के बाद it's such a cardio, it's a high cardio workout. आप डांसिंग के बाद या पानी नहीं पिया आपने, वो भी पूरे 8 घंटे, 12 घंटे, सॉरी, 8 या बजे से रात के या 5 बजे तक. ओ माय गॉड. ओके. या तो क्या क्या इसके लिए मेंटल, मतलब उसके बीच लिए मेंटल कितना लेवल कितना स्ट्रांग होना चाहिए? हाउ टफ यू वर एट नहीं, दैट टाइम? मेंटली तो हम लोगों को प्रिपेयर होना ही चाहिए. और या बिकॉज और वो क्या था कि मैंने जो ये म्यूजिक पे भी मैंने काफ़ी वर्क किया हुआ था. एंड आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर दैट डे कि शूट कब आएगा, शूट कब आएगा. तो और वो शूट का ही दिन था. ओके. एंड बस मैं बीच बीच में एक एक सिप वो ले रहा था, रेड बुल मैं ओके. पीता जा रहा था, ओके. ताकि एटलीस्ट आई कैन स्टैंड, मेरे या को या कांट. और शूट में क्या होता है कि जब शूट करते हैं तो हम एसी वेसी सब बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ताकि वो आवाज यस ना जो आए. फैन वैन. And it was यस like high intensity, जिसे बोलते हैं डांस, और वो everything was there. I've seen the video और it is doing या great. 1 महीने में ही उसने like it had crossed 1 lakh mark, and views का जो या बहुत अच्छा कर रहा है. Congratulations. So थैंक यू वेरी मच. let's start asking you with some questions, basic questions. तो जो या श्योर लॉकडाउन में आपने obviously you are a choreographer, you are you choreograph a lot of people, like award shows, stage shows and all that. तो अभी लॉकडाउन में आपने क्या नया किया? लॉकडाउन में सबसे पहले तो जब ये लॉकडाउन हुआ मैं सबसे पहले इरिटेट हो गया, क्योंकि जिम नहीं था. या सब जिम क्लोज हो गया था. या यस. या सो तो अभी जिम क्या करें यहाँ. तो मैंने घर में ही वो जो बैंड होता है, मैंने उससे या वर्कआउट थोड़ा बहुत कर रहा था मैं. एंड आई वाज लाइक टोटली ऑन ऑफ डाइट, ओके. बिकॉज जो 8 महीने मैंने जो डाइट किया था, तो बॉडी को थोड़ा सा चेंज और चाहिए होता है, राइट वरना वी कांट सस्टेन ऑन दैट काइंड ऑफ डाइट राइट सो राइट. लॉन्ग. सो मैंने इसमें ये जो 3 महीने मैंने 3-4 महीने मैंने काफ़ी गाने बनाए. कोरियोग्राफी वाइज मैंने काफ़ी क्रिएटिव अपने आप को रेडी किया, प्रिपेयर किया. राइट. एंड मैंने एक गाना मैंने बनाया जो क्वारंटाइन पे ही है, जो इट्स अ रैपिंग. एंड वो मैं जल्दी शूट करूँगा. ओके. तो वो भी ये मैंने इस दौरान ही बनाया. ग्रेट. या ओके. तो मतलब पूरे लॉकडाउन में आप काफी क्रिएटिव रहे. आपने शूट, मतलब गाने आपने कोरियोग्राफ खुद से कोरियोग्राफ, यू चैलेंज योरसेल्फ, कुछ नए नए स्टेप्स एंड ऑल दैट. आपने इसको जो आपकी गाने के लिए किया है, आपने कोरोना के ऊपर जो एक लॉकडाउन पे बनाया है शायद गाना. सो बेसिकली आपने काफी क्रिएटिव काम किया है लॉकडाउन में, isn't it? बेसिकली आई डोंट नो कि भगवान ने मुझे बनाया ही ऐसा है कि मैं हमेशा ना, या हाँ, मैं हमेशा मेरा दिमाग कहाँ कहाँ भागता रहता है. या अगर मैं कहाँ ड्राइव पे जा रहा हूँ या या मीटिंग पे जा रहा हूँ, मेरा दिमाग लाइक डे एंड नाइट कहाँ ना कहाँ मेरा घूमता रहता है कि राइट अच्छा अभी ये करना, अभी ये राइट करना, राइट अभी ये करना. राइट तो मैं हमेशा चार्ज रहता हूँ मेंटली. राइट राइट सो एक कोरियोग्राफर के लिए गाना गाना जो प्रोफेशनल सिंगर नहीं है, राइट. तो वो एक अलग ही हो जाता है. या सेकेंडली, उस वर्किंग के बीच में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना, उसके लिए टाइम निकालना, या वो सब बहुत ही इट्स नॉट इजी थिंग. या तो हाँ, तो ये मतलब काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी चीज़ें रही. बट फाइनली जो मैं क्रिएटिवली सोचता हूँ उसको मैं ट्रैक पे ले आता हूँ एट लास्ट. या अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि और क्या क्या मेरे माइंड में चल रहा है जब आप पूछेंगे. डेफिनेटली. तो तो बहुत इंटरेस्टिंग है. आई वांट टू नो अबाउट योर जर्नी, कि कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट की. समबडी, जैसे आपने बोला, मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि आप एक नॉन सिंगर हैं और आप सिंगर बने, और आप बॉलीवुड में आपका कोई यू डोंट हैव एनी गॉडफादर एंड ऑल, एंड देन यू केम दिस वे. आपने इतनी दूरी तय करी है, इसको अकेले आपने तय करी, और किसी के अंडर असिस्ट भी नहीं किया आपने, कुछ भी नहीं किया. सो वी वांट टू नो अबाउट योर जर्नी. कहाँ से स्टार्ट हुई? या नहीं, अगर
अगर गॉडफादर को लेके जाए तो वो एक है, वो Okay. मैं बताऊंगा आगे। Yeah. बट या मैंने किसी के अंडर कभी काम नहीं किया, बिकॉज Right. क्या होता है इंडस्ट्री में उन लोगों को ज़्यादा काम मिलता है जो अ, जिसने किसी को असिस्ट किया हो, या Right. जिसने किसी के साथ काम किया हो, Right. Right. तो इंडस्ट्री में ऐसे ही लोगों को जल्दी काम मिल जाता है। बट Yeah. अगर जो नया आए और डायरेक्ट आए तो उसको फर्स्ट ब्रेक देना ही मतलब तो बहुत रिस्क हो जाता है, वो आदमी Right. डरता है कि Right. पता नहीं ये शो का क्या कर देगा, Right. तो यही है। तो अभी आप क्या पूछ रही थी, जर्नी मेरा? Yes, we want to know, like, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, like you were inclined towards this dancing thing, बचपन से आप inclined थे क्या? मैं नहीं, एक्चुअली डांसिंग का शौक मैं बचपन में तो ऐसा कुछ इतना नहीं था, लेकिन बचपन ही बोला जाएगा उसको, लाइक व्हेन आई वाज इन सेकंड स्टैंडर्ड। तो अपने बहुत एरिया में होता है बचपन है ना, ये तो, बहुत ही छोटा है ये। या बहुत बचपन ही हो गया। तो मतलब मैं किसी के सामने से डांस करना वो सब बहुत ही मेरे लिए, मैं बहुत शर्माता था। Right. बट मैंने एक बार एक एरिया में एक बंदा रहता था, जो उसने एक बार जैसे होता है ना एक एनुअल फंक्शन वो सब स्कूल में, तो उसने वहाँ पर एक ब्रेक डांस किया था। तो वो देखा, जब मैंने लाइव देखा था तो मैं बहुत ही इम्प्रेस हो गया था डांसिंग से। तो मुझे आई वांट टू लर्न दिस काइंड ऑफ डांसिंग। तो वो मेरा एक सबसे पहले एक बॉडी में डांस आना, वो मेरे लिए सबसे पहला वो टर्न पॉइंट था। Right. फिर उसके बाद तो यूजुअली मैंने प्रैक्टिस चालू कर दिया। और एक ही साल में मैं ऐसा हो गया कि दैट हेड स्पिन एंड ऑल, सर पे Yeah. घूमते हैं Oh wow. मैं वो सब करने लग गया। अपने आप? तो यस 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 यस। Oh my God. और उस टाइम पे ज़्यादा यूट्यूब भी नहीं होता था, Yeah, तो yeah, वैसे जब yeah, हाँ, yeah, obviously. वैसा करने लग गया, हेड स्पिन वेड स्पिन। तो फिर मैंने फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया जब हमारे एरिया में एक लोकेलिटी में गणपति त्योहार जब होता है, जी 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 जी। यस, गणेश उत्सव में मैंने परफॉर्म किया। एंड जो भी एरिया के लोग थे, काफ़ी लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। एंड उन्होंने क्लैपिंग किया कि हम लोगों को पता नहीं था तू इतना अच्छा डांस करता है। और क्या होता है, एक बंदे को जब एक छोटा सा रिस्पॉन्स आना चालू हो जाए ना, तो वो Yeah, अपने आप और चार्ज हो जाता है। yeah. वो फिर और उसको दिल से प्रैक्टिस करने लगता है और दिल से कुछ Every करने लगता artist needs an appreciation. अगर कुछ होता है तो वो it gives है। a या push, it gives the push and the boost जिसे बोलते हैं. Yeah, यस 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 यस। yeah, बट उस टाइम पे तो मुझे ऐसे नॉलेज नहीं था कि yeah. अच्छा ठीक है। बट उसके बाद थोड़ा अंदर बोलते हैं ना, चार्ज हो गया। एंड डांसिंग के लिए मेरा एक बहुत पैशन, बहुत मुझे नहीं पता था कि लेकिन इधर तक आ जाएगा पैशन, Okay, दैट okay, आई डोंट नो। okay. फिर तो काफ़ी गैप आ गया, स्कूल का गैप आ गया। फिर स्कूल के एनुअल डेज में ही करते थे। Right, तो मैं उस टाइम पे मेरे काफ़ी जो मेरे सीनियर है जो मुझे पढ़ाते थे, वो लोग कॉलेजेस इंटर कॉलेज के बारे में काफ़ी कुछ बोलते थे। right. कि इंटर इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन, जेवियर्स, मल्हार, रिजवी एंड ऑल। Yeah, तो मैं वो सुन के ना, छोटा था, वो सुन के बहुत एक्साइटेड होता था कि मैं भी एक दिन ये करूँगा। मेरे को भी जाना है और मैं ज़रूर करूँगा। और मैंने बहुत लकीली, एक भगवान का कुछ होगा कि मैं 10th पास हो गया। बिकॉज मेरा स्टडीज से मेरा माइंड पूरा पूरा ब्लैंक obviously हो गया आपका था। ध्यान जब हेड स्पिन में होगा तो कहाँ से स्टडी कहाँ से करोगे, पूरा यस डांस यस में। यस यस। वो स्पिन Yeah, होते होते मैं दो चीज पे अटक गया था। एक था स्पोर्ट्स, और क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा एथलीट रहा हूँ स्कूल में। okay, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं प्रोफेशन अपना एथलीट में ही बनाऊंगा, मुझे स्पोर्ट्स में ही जाना है। okay. बट फिर जब डांसिंग आया तो डांसिंग में मैंने इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन करना Yeah, चालू किया। yeah, बिगनिंग में तो फर्स्ट ईयर में हर जगह हार गया। हर जगह मैं सब जगह हार गया। तो मैंने बोला कि यार, ये मेरे अंदर क्या कमी है। yeah, तो मैं अपने आप में कमी ढूंढने लगा कि ये yeah, प्रॉब्लम क्या है। yeah, लेकिन जिस दिन मुझे प्रॉब्लम समझ में आ गया, yeah, नेक्स्ट ईयर से आई रिमेम्बर, मैंने जो जीतना चालू किया, yeah. 99.9 मैंने हर कंपटीशन जीता। और यू बेसिकली कैन से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ सेल्फ क्रिटिक जिसे बोलते हैं। खुद को आपको अपने आप को इवैल्यूएट करने की बहुत जरूरत होती है, लाइक कहीं पे भी, या इवन इफ यू हैव डन या नाइस, आपको अगर आप इवैल्यूएट नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा आपकी कमी क्या है, तो आप और अच्छा बेहतर कैसे कर सकते हैं। यू हैव गॉट दैट टैलेंट। यस यस। और मेरे ख्याल से वो जो हारना ना, हर कंपटीशन के बाद हार के मुंह लटका के जाना घर, या तो वो जो एक जुनून एक था ना, यार कुछ तो है, लेकिन जीतना है, जीतना है। तो कैसे, और कहाँ उसके से वो आपको एक राह जिसे बोलती है, या जिसे बोलते हैं कि आपको कहाँ से वो रे ऑफ लाइट दिखाई दी कि आप बॉलीवुड में, आपने सोचा कि बॉलीवुड जाके
लेट्स ट्राई समथिंग, यू नो बॉलीवुड में अपना नाम देखते हैं, यू नो करते हैं, वो कहाँ से आया? नहीं, जब हमने ये डांसिंग में कॉम्पिटिशन किया, कॉम्पिटिशन करके जब हम जीत गए, उसके बाद बोला कि चलो अभी एक लेवल ऊपर जाना चाहिए, है ना? तो वो एक लेवल ऊपर था रियलिटी शो, उस वक्त था बूगी वूगी। ओके। और बूगी वूगी में हम जीते, करीबन 5 बार मैं नॉन स्टॉप जीता हूँ बूगी वूगी। यस, दैट टीवी शो। उसके बाद मैं जीता हूँ ऑल इंडिया डांस चैंपियनशिप, मैं फर्स्ट था। यू यस। वन बूगी तो वूगी आपने 5 बार जीता है? यस, आई विन फाइव वाओ। टाइम्स, फाइव वाओ। टाइम्स। ओके। या सो तो उसके बाद तो ऐसा हो गया था कि मतलब रवि बहल एंड जावेद जाफरी, उनके साथ या मैंने उनके प्रोफेशनल शोज भी किए, है ना? या और मैंने रवि बहल का वीडियो भी किया था, जब उसने अपना एक वीडियो निकाला था लड़कियां, ये सब वीडियो निकाला था। ओके। केन घोष वॉज द डायरेक्टर, ओके। और मैंने उसमें कोरियोग्राफ भी किया था और मैंने उसमें परफॉर्म भी किया था इन दैट वीडियो। और फिर उसके बाद बोलते ना कि चलो यार अभी एक ये बहुत हो गया है ना, अभी हम लोगों को 2 स्टेप और ऊपर जाना चाहिए। या फिर उसके पीछे मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी सिंगर्स लोग के साथ मैंने काम किया, करते-करते मुझे मुझे एक चीज़ पता था कि यार एक हम लोगों को एक बड़ा की चाहिए, बिकॉज़ मैं मेरे असिस्टेंट को हमेशा बोलता था या कि हमारे पास कोई बड़ा पावर नहीं है। जिस दिन हमारे पास बड़ा पावर आएगा, उसी उसी टाइम पे हम लोग अंदर जा सकते हैं। अदरवाइज़ वी कांट गो इन, क्योंकि कोई हमारे पे रिस्क नहीं लेगा। तो लकीली वो दिन भी आया। ओके। लकीली वो दिन भी आता है, बोलते हैं ना कि मेहनत करो, फल की चिंता मत या करो। या तो जब हमने सिंगर शो किया तो हम लोग, ऐसा था कि हम लोग ट्रैवल में भी यहाँ से कलकत्ता जाना, कलकत्ता से जबलपुर जाना, नॉन स्टॉप ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं, बट यू कांट बिलीव हम लोग ऐसे चालू टिकट लेके चढ़ जाते थे। हम अच्छा। लोग को कंफर्मेशन टिकट पता ही नहीं होता था क्या है। ओके। तो पूरा ग्रुप हम लोग पूरा ऐसे ही चढ़ जाते थे, कैसे जाना। बट उस टाइम पे हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। आज मैं वो दिन सोचता हूँ या तो डर भी लगता है, या बट एक इंजॉय भी होता है, बिकॉज सब हम दोस्त थे, मजाक करते करते जाते थे, तो वो एक अलग ही एक्साइटमेंट और अलग ही वो चीज़ था। तो वो दौरान जो सिंगर्स का करते करते एक बार मेरी मुलाकात हो गई मिस्टर अक्षय कुमार से। मैंने उनको पिच किया, मैंने उनको कहा कि एक बार मेरी रिहर्सल हॉल। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आऊँगा, एक दिन ज़रूर आऊँगा। तो एक दिन उसने वो एक क्यू दे दिया मुझे, उसके बाद तो मैं उसके पीछे पड़ गया हूँ। 5-4 महीना मैं उसके पीछे भागा भागा। तो वो दिन भी आया जहाँ पर उसने बोला कि टुमारो आई एम कमिंग टू सी यू। तो वो वहाँ पर आया, और रिहर्सल्स में फर्स्ट टाइम उसने मुझे बोला कि आदर्श नगर लोटस पेट्रोल पंप, वहाँ पर काफ़ी रिहर्सल हॉल है पीछे। तो या उसने मुझे कहा कि इंदर मैं आ रहा हूँ, तू एक काम कर, थोड़ा सा लेन के बाहर आ जा। मैंने बोला ठीक है सर, मैं आता हूँ। मैं वहाँ पर गया एंड आई वाज जस्ट सर्चिंग कि उसकी कार, मुझे पता थी कि कौन सी गाड़ी है उसकी। तो वो मैं देख रहा हूँ। सडनली एक बाइक आता है, एक बाइक आके रुकता है एंड वो हेलमेट खोल के बोलता है, इंदर कब से तेरा। तो दैट वाज अक्षय कुमार। वो बोला चलो बैठो, तो मैं उसके साथ बैठा और हम गए रिहर्सल हॉल। एंड रिहर्सल हॉल जाके वो बैठा, एंड वो वो दिन आज भी मुझे पूरा क्लियर याद है। अ, हमने ग्रुप ने सब प्रे किया कि या जो करते हैं, वो प्रे करने के बाद भी डिसाइडेड चलो नाउ रॉक इट। और परफॉर्मेंस के बाद अक्षय, आई ही वाज लाइक दिस, कॉन्स्टेंटली वाज लाइक दिस he's कि like an incredible human being, you know, because he supports talent. That's what, you know, he supports या talent and yeah, ही सपोर्ट, बट मैं इसको क्यों मानता हूँ अक्षय को yeah, ज्यादा, yeah, बिकॉज अक्षय ने मुझे वो टाइम पे चांस दिया जहां पर मैं कभी कुछ इतना ज्यादा था right, नहीं। right, right. I think some internet issues again. Yes. कुछ द प्रॉब्लम है। Yeah, यस। yeah, हाँ, अक्षय ने मुझे उस वक्त चांस दिया yeah, जहाँ पर मेरे मेरे पास, जैसे बोलते हैं ना, एक रिकॉर्डिंग का पैसा नहीं, रिहर्सल का पैसा नहीं है, yeah, उस तरीके की चीज़ों में yeah. वो मुझे रिहर्सल का पैसा देता था। मैं उतना लेवल का था भी नहीं, लेकिन उस टाइम पे वो, Right. इसीलिए मैं उसको हमेशा एक बिलीव करता हूँ कि ही Definitely. इज And लाइक you माई। know what? मैं उसको, Gratitude is the right attitude. You know, that's what I say. You have that या gratitude, which is the right, because you know we should never forget people. जैसे बोलते हैं, जिन्होंने हमें या उस नेवर नेवर समय नेवर। पे मदद करी जाए, जो शायद हमारे लिए बहुत क्रूशियल था। और
अगर उस टाइम पे आपको वो नहीं मिला होता, वो मदद नहीं मिली होती, तो शायद आप यहाँ नहीं होते. तो इट्स लाइक अमेजिंग, लाइक दिस स्टोरी इज अमेजिंग. ये सो और हाँ, और एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे आर्टिस्ट भी होते हैं ना, वो भी उनको चांस देते हैं जिनके अंदर उनको टैलेंट दिखता है. राइट, तो राइट, वेरी ट्रू. ये मेहनत वो है जो मैंने राइट, 4 साल पहले चालू की थी. या हम रोड पे प्रैक्टिस करते थे ग्रुप, क्योंकि हमारे प्रैक्टिस करने का जगह नहीं होता था. तो हम रोड पे प्रैक्टिस करते थे लोकेलिटी के. और जो रोड पे मिरर लगा होता है ना, कांच, और कार खड़ी होती है तो कार में जो उस मिरर पे होता है, करते थे, हाँ, उस पे करते थे, राइट. उसमें मैं जस्ट अपना सिंक चेक करता था. उसमें देखे. या उसमें पीपल उसमें आर लाइक सेइंग, एक बार हेलो, आप एक बार सबको जरा हेलो बोल दीजिए. एवरीबडी इज सेइंग लव यू सर, लॉट्स ऑफ लव. तो एक बार हाय. उनको भी आप हेलो बोल दीजिए. यस, एंड यस, थैंक यू यस, ऑल, यस, यस. जो मुझे भी बीच बीच में थैंक यू कॉम्प्लीमेंट वेरी दे रहे मच हैं. तन्नू. मोस्टली. हाँ. So just say hello. क्या? Yes, yeah. So a lot of fans are saying that you have been बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं, which I am actually because मैं देख पा रही हूँ कि they are like actually applauding you for all the hard work जो आपने किया है. और बहुत काफी देर से लिख रहे थैंक हैं यू सर. We are खुशी, a great fan of you. Yeah. शिल्पी. So या नहीं, ये एक्चुअली मैंने नोटिस किया कि ये वीडियो के बाद है ना, ये काफी न्यू ऑडियंस मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं, काफी लोग. okay. और मुझे काफी अच्छा लगता है कि वो लोग, बिकॉज आई कांट टॉक ना ऑन Yeah. दिस डीएम पे कोई मैसेज Yeah. करता है. Right. बट Right. मैंने ये डिसाइड किया कि अगर मेरे वीडियो के बाद मैं 1 महीना ना सबसे बात करूँ. Yeah. आई डोंट मेरे को ऐसा लगा कि मैं सबसे बात करूँ. आई वॉज टॉकिंग टू एवरीवन. Yeah. सो मैंने वो सबका रिएक्शन देखा कि सब जो लोग मेरे से कुछ जानना चाहते हैं, मेरे से Right. ना, Right. कुछ दो लड़के हैं, आई डोंट नो, 2 बच्चे हैं, एंड उन लोग की 13-14 साल की उम्र होगी, बट वेरी गुड डांसर, वेरी गुड डांसर. Yeah. तो उनके इतने मैसेजेस थे, मैं देख नहीं पा रहा था, लेकिन लास्ट में उसने एक मैसेज किया कि सर, हमारे लिए कोई सपोर्टर नहीं है, कोई हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है, शायद आप भी नहीं करोगे, तो आई फील सो बैड. तो मैंने बोला कि आप अपना नंबर भेजो, आई कॉल यू. Yeah. तो उन्होंने नंबर भेजा और आज मैंने उनसे बात किया. और वो लोगों को यकीन नहीं था कि मैंने उनको कॉल Yeah. किया. तो मैंने उनसे Obviously. हाँ, तो Yeah. तो Obviously. मैंने उनसे बात की और मैंने उनको बोला कि देखो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, पहले अपना टैलेंट, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, Yeah. 14 साल की हो, तो अपना टैलेंट स्ट्रॉन्ग करो. Definitely. ऑडियंस जो भी है वो पब्लिक आपके पास खुद ही आ खुद जाएगी, ही आप लोगों आएगी. को चिंता Right. करने की जरूरत नहीं है. So तो आप I जस्ट चिल. want to ask this, like when आपने इतने सारे जिसे बोलते हैं स्टेज शोज, आपने अवार्ड्स, आपने कोरियोग्राफ किया हुआ है, how was it like कोरियोग्राफिंग द इंडियन माइकल जैक्सन, प्रभु देवा, वो उनको हाँ, और choreograph- दैट oh my वाज God. मतलब ये that's आपके like, सवाल आपको बहुत ही. I remember माधुरी दीक्षित, जिनको डांसिंग दीवा बोला जाता है, उनके लिए भी वो उनके साथ डांस करना एक बहुत बड़ी शी टोल्ड इन एन इंटरव्यू दैट इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग फॉर माई सेल्फ. मतलब मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा, बट आपने उनको कोरियोग्राफ किया है, दैट्स अनदर लेवल ऑफ थिंग. तो वो कैसा था? चलो, वीकेंड से माधुरी तो फिर भी शी इज अ आर्टिस्ट, है ना, Obviously. पहले आर्टिस्ट है, फिर वो डांसिंग है. Yeah, तो yeah. उसके लिए तो चलो ठीक है, बट मेरे लिए तो वो पहले कोरियोग्राफर है, That's what I'm एंड saying. उसको That's what I'm saying. कि यस. उनके लिए इतना डिफिकल्ट उनको लगा, तो आपके लिए क्या था वो? How was that experience? नहीं, आई रिमेम्बर जब मैंने अपना पहला शो किया विद अक्षय, वो था क्रिकेट क्रिकेट अवार्ड्स, और वो शो के बाद मुझे दूसरे शो का ऑफर आया, जहाँ पर क्लाइंट ने मुझे बोला कि आप आके मुझे मिलो. मैं वहाँ पर मीटिंग के लिए गया, और मीटिंग पे वो लोगों ने पूछा कि इंदर, मतलब इसमें 2 कोरियोग्राफर्स हैं, आप कर रहे हो और शामक डावर कर रहा है. मैंने बोला ओके. तो बोला 2 एक्ट ये कर रहे हो, 2 एक्ट आप कर रहे हो. तो मैंने बोला मेरा 2 एक्ट कौन सा है. तो बोला कि 2 एक्ट आप एक याना गुप्ता के लिए कर रहे हो, एक एक्ट आपका, एंड दूसरा एक्ट यू हैव टू कोरियोग्राफ प्रभु देवा. सो प्रभु देवा बोला, तो आई वाज लाइक, माय रिएक्शन वाज फ्रॉम इनसाइड, ओके प्रभु देवा, ओके ठीक है. तो बिकॉज मेरे माइंड में क्या है, बिकॉज आई नो कि आई कैन कोरियोग्राफ, बिकॉज हर कोरियोग्राफर का ना एक डिफरेंट स्टाइलिंग होता है. Yeah, yeah, तो मेरा स्टाइलिंग अलग है, प्रभु से काफी अलग है. yeah. तो मैंने बोला कि मैं दिमाग में कैलकुलेशन करने लगा कि अब प्रभु आएगा, बोलेगा यार मेरे जैसा कर, माइकल का Yeah, yeah. तो आई वाज लाइक यार, मेरा कोरियोग्राफी मर ना जाए. देन आई वाज वेरी, थोड़ा अंदर से थोड़ा बहुत इनसिक्योर था कि पता नहीं ये कोरियोग्राफी. बट मैंने क्या किया, अपने तरफ से एक पूरा उसके लिए एक एक्ट क्रिएट किया, एंड दैट वाज सेंसुई अवार्ड्स. Okay. तो मैंने उसका एक एंट्री क्रिएट किया, एंड दैट एंट्री वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट एंट्री Okay. वो पूरे अवार्ड शोज में, पूरे ईयर के अवार्ड शोज में.
still people, still lot of dancers, you know, उनको याद है कि इंदर तूने वो चीज किया था, याना गुप्ता का एक्ट किया था, स्टिल दे रिमेम्बर, और उन लोग को म्यूजिक याद है. सो व्हेन प्रभुदेवा आया रिहर्सल में, एंड आई वाज सब डांसर लोग को बोला कि तुम लोग कोऑर्डिनेशन कर लेना, बिकॉज वो सिर्फ मुझे देखेगा मतलब, क्योंकि वो अपने आप को मेरी जगह पे रिप्लेस करके देखेगा. तो मैंने बोला मैं संभाल लूंगा, तुम लोग संभाल लो पीछे. तो हाँ, तो मैंने वो कोरियोग्राफ पूरा प्रभु को दिखाया, एंड प्रभु का फेस है ना, लाइक कंफ्यूजन वाला था, जैसे साउथ इंडियन में बोलते हैं ना, साउथ इंडियन होता है. हाँ, तो ही वाज लाइक वेरी कंफ्यूजन टाइम. तो ही सेड कि इंदर कम कम कम. मैंने बोला कि बाहर लेके जाके वही बोलेगा कि योर स्टाइल इज वेरी नाइस, बट जस्ट चेंज बिट, यू कैन टेक. तो मेरे को कार तक लेके गया, एंड ही सेड कि awesome choreography, awesome. So I said okay sir, and Inder, I'll give you 1 week. I want to learn exactly the way you have done it, So I was like, oh, that was like that second was the it moment, yes, that was like second achievement after Akshay and Prabhu Deva said, "Okay, I want to learn your choreography, the way you are performing. I want to perform like that." So it was like golden words, I must say that's like a golden words, like somebody from like coming that from Prabhu Deva, obviously, definitely. And मैं थर्ड चीज आपको बोलना चाहूंगा, वो मैंने अभी तक मैंने इतने इंटरव्यू किए, मैंने किधर नहीं बोला, ये मैं आपको बोलता हूँ. थर्ड वॉज ऋतिक रोशन. हाँ, यस. मैं एक शो कर रहा था हांगकांग में, तो ऋतिक के साथ मैं पहली बार काम कर रहा था. तो ऋतिक आया देखने के लिए, एक्ट बैठा, और पूरा एक्ट वॉज सो एनर्जेटिक, बिकॉज आई नो दैट ऋतिक इज गुड डांसर. तो मैंने अकॉर्डिंगली उसको माइंड में रख के मैंने फुल पावर पैक एक्ट क्रिएट किया. और ऋतिक ने वो एक्ट देखा, और देख के उसका फेस बहुत नर्वस वाला हो गया. ही सेड इंदर सुपर करके he went. तो ये कहाँ चला गया यार. Then he called me, रात को 1 बजे he called me. He said कि हाँ Inder, how are you? I said sir, I'm fine. You said Inder, I just want to say your choreography is superb, outstanding, but I can't do. I say why? No, like your movement is so powerful and non-stop. I said no sir, don't take in that way. I'm there, I'm with you, तो आप मुझे मत फॉलो कीजिए, क्योंकि मैंने कई जगह पे क्योंकि आर्टिस्ट का एक चीज होता है कि आर्टिस्ट लोग जब लाइव शो या परफॉर्म करते हैं, वो लोगों को बीच में रेस्ट पार्ट चाहिए होता है व्हेन दे आर लिपसिंग. जब वो लोग लिपसिंग कर रहे हैं, तो लिपसिंग में अगर उनके फेस पे अगर वो थकावट आ जाए, तो वो बहुत बुरा लगता है. तो वो चीज सोच के वो डर गया था, और बोला ये इतना एनर्जेटिक डांस है. तो आई सेड कि नहीं, मैंने वो कैलकुलेशन किया हुआ है, यू जस्ट कम, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं पूरा आपको. और जो उसने फिर किया, 10 दिन आके रिहर्सल किया, एंड उसके बाद मैं उसके घर गया कुछ एक ट्रैक देने के लिए. व्हेन आई वेंट, तो उस टाइम पे सुजैन उसके साथ थी. उसकी जैसे ही मैं गया तो सुजैन बोली या मैम इंदर, अच्छा इंदर, यस, बहुत तेरे बारे में बोल रहा है पिछले 1 वीक से, जस्ट टॉकिंग अबाउट यू, इंदर का डांस देख, इंदर ऐसा है, इंदर क्वेश्चन टू यू, लाइक आई वांट टू नो अब गूगली, एक्चुअली मतलब मैं आप उसमें देखती हूँ आपको. आप ये बताइए, अक्षय कुमार, प्रभुदेवा या ऋतिक रोशन, किसने आपके कोरियोग्राफी जो स्टेप्स थे उसको ज्यादा अच्छे से किया? इफ यू हैव टू. अक्षय एनी टाइम अक्षय. Always the last love, first love, right? अक्षय. Great. So like moving on, ये आपकी स्टोरीज तो डेफिनेटली as I expected बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो अभी हम बात करते हैं, जैसे आपका न्यू सिंगल रिलीज हुआ है बदमाश, तो we want to know how बदमाश you were as a kid. That's my question to you. बदमाश, हाँ, मैं बहुत ही मस्ती करता था. बदमाश थे, तो आपकी जो बदमाशी की 2-3 किस्से सुनाइए जरा हमें. हाँ, मैं एक किस्सा बताता हूँ. मैं क्या करता था, मेरे जो दोस्त है ना, मतलब हम लोग क्या करते थे उस टाइम पे, एक जगह होता था जहाँ पर खाली एक घर होता था जहाँ पर हम पढ़ते थे. तो थोड़े टाइम के बाद सब थोड़ा बोलते चलो सो जाओ, थोड़ा सा आराम करते थे ना. तो जब सोए होते थे ना वो लोग, तो मैं क्या करता था, एक पेपर लेता था, पेपर को फोल्ड करता था, और उनके ना जो फिंगर्स होते ना, अंगूठा, उसके ऊपर एक पेपर लगा देता था, और माचिस लाके वो पेपर को जला देता था.
Oh my God. और जाके मैं सो जाता था। हाँ, तो वो जो पेपर जल के जो उनको जो वो आग बर्न लगती होता था, है। हाँ, oh my God. अरे अरे आई वाज वेरी रूड। मतलब इस मामले में ना मैं सोचता ही नहीं था, मैं कुछ भी करता था और मजाक मजाक, और कुछ उसके भी। बाद आपके एक्सप्रेशन ऐसे होते थे भोले वाले कि आपको कुछ पता ही नहीं है, isn't it? आई डोंट नो। हाँ, बट कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ कि वो लोग समझ गए। हाँ, कि अगर यही है। मैं अगर दिल्ली में भी बैठा हूँ, अगर कोई जला देने बोले इंदर आया था क्या, या अभी ऐसा चीज हो Oh गया my God. कि Okay. इंदर आया होगा। Okay, great. So, तो tell मैं me, मजाक what are में your लाइक, future plans in the क्या क्या आप इसके बाद क्या है आपके future plans? देखिए अभी जो जो चीजें मैंने की, Yeah. स्ट्रगल हर चीज में होता ही है। जी, मैं ये हर आर्टिस्ट को भी बोलना चाहूंगा कि जी, हर चीज में स्ट्रगल है। वेदर इट्स सिंगिंग, वेदर इट्स एक्टिंग, जो भी हो, yeah, बट उसको अपने गोल को फिक्स करके यू जस्ट मूव अहेड। right, और मैंने कोरियोग्राफी अच्छे से अचीव की, आई एम डूइंग इट। right. मैंने सिंगिंग प्लान किया, मैंने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, जहाँ पर अच्छे अच्छे सिंगर्स ने भी उसको अप्रिशिएट किया। बिकॉज मैं हमेशा काम करने के बाद एक चीज सोचता हूँ कि कोई भी अगर सिंगर है तो वो मेरे पर उंगली उठा के ये ना बोले कि इंदर यार वो तेरा नोट में गड़बड़ था, वो राइमिंग बराबर नहीं था। तो आई वॉज वेरी पर्टिकुलर ऑन दैट पेज। फिर अगर मैं बॉडी फिटनेस कर रहा हूँ तो फिटनेस वाले देख के बोले कि ये क्या बनाया, ये क्या है? यू नो So it has to be या perfect in everything. Yes. यस। अगर कोरियोग्राफी है तो डांसर लोग, सब डांसर्स एक्सपेक्ट करते Yeah, हैं कि इंदर कुछ करने वाला, तो yeah, उनका yeah, एक्सपेक्टेशन मैं क्रॉस करूँ। yeah, yeah. तो दैट वाज 3 मोटिव जो मैंने किया। अभी मेरा फ्यूचर प्लान है कि आई हैव सम ट्रैक्स, मैंने काफी गाने रिकॉर्ड किए, इवन तीसरी पिचिंग में की, और म्यूजिक Right, वीडियोस क्रिएट करो। right, right. तो मैं थोड़ा 3 4 5 म्यूजिक वीडियोस करूंगा अभी एंड Okay, उसके बाद आई रियली वांट टू गो इनटू डायरेक्शन। मेरा मेरा okay, मेरा लास्ट यही है कि okay, आई वांट टू डायरेक्ट। okay. Great. और मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि मुझे यही है। डायरेक्शन में ही जाना है। Great. So, Yes. I want to ask you, is there any message that you want to give to your fans जो आपको DM करते हैं कि सर हमें भी डांस करना है, हमें भी करना है, या आपके जैसे बनना चाहते हैं, चाहे वो कोरियोग्राफर बनना चाहते हो, या सिंगर बनना चाहते हो, या फिर डायरेक्टर हो, तो one thing that you want to tell, or short message that you want to give to your fans. हाँ, सबसे पहले तो मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, एक क्योंकि क्या होता है कि ये लोग मुझे काफी लोग डीएम करते हैं फिटनेस, डांसिंग और सिंगिंग, और मुझे इतने मैसेजेस रिसीव होते हैं, इतने मैसेज रिसीव होते हैं कि मैं उनको एक एक से बात करूंगा ना तो फिर पूरा दिन निकल जाएगा। Yeah, yeah, तो मैं उन सबको ये चीज बोलना चाहता हूँ कि मैं अभी लाइव आऊंगा, लेकिन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेके आऊंगा। right, अगर मैं लाइव आ रहा हूँ तो मैं फिटनेस लेके आऊंगा, जो भी right, फिटनेस के लोग जानना चाहते हैं दे कैन कम, right, right, सिंगिंग और डांसिंग। right. तो मैं एक सबको वो लेके आऊंगा ताकि मैं सबको इंडिविजुअली, तो एक बार मैं सब लोग ही समझ ले कि क्या चीज़ है, Yeah, कि मैं अलग अलग सबको ये करूँ। right, और मुझे अगर एक मैसेज देना, अगर जिनको भी अगर डांसर बनना है, सिंगर बनना है, कोई बाहर से बॉम्बे आ रहा है, yeah, फर्स्ट थिंग कि ये चीज़ में स्ट्रगल बहुत है, right, कि स्ट्रगल से डरना मत, right, जस्ट गो हेड, अपना गोल फिक्स करो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप डांसर बन के आ रहे हो बॉम्बे में काम करने ना, yeah, तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग डांसर बनाओ कि yeah, जहां पर भी आप फर्स्ट ऑडिशन में जब खड़े हो जाओ ना, तो yeah, कोरियोग्राफर आपको छोड़े ही ना, बोले तू yeah, मेरे साथ ही करेगा और किधर yeah, नहीं जाएगा। yeah, फर्स्ट अपने आप को वैसा कैपेबल बना के आओ। right, दूसरा, कोरियोग्राफर बनना है तो कोरियोग्राफर बनना इट्स नॉट इजी। मैं मानता हूँ कि चलो, मैं अगर सबका वैसा नहीं होता, किस्मत yeah, बोलते ना 10 में एक होता है। yeah, तो चलो, लकीली मैंने मैंने अपना कोई बैकअप लेके नहीं चला। yeah, अगर आज मैं कोरियोग्राफर नहीं होता तो मैं पता नहीं क्या होता, right, बिकॉज मैंने स्टडीज कुछ किया yeah, नहीं कुछ है। नहीं किया, right, तो मैं हमेशा उनको एक चीज focus, गाइड करना चाहूंगा कि कोरियोग्राफर अगर आपका पैशन है तो उसको दिल से करो, yeah, अपने इंडस्ट्री में घुस जाओ, काम मतलब पूरी कोशिश करो अपनी, ताकि होगा तो आपको गर्व होगा, अगर नहीं होगा तो एटलीस्ट आपको अपने आप से कंप्लेंट नहीं होगा कि हमने मेहनत नहीं किया। yeah, तो एटलीस्ट yeah, ये दोनों चीजों में आप अपने आप को मिरर में देख सकते हो। right, right, थर्ड थर्ड जब आप ये स्ट्रगल पे निकलते हो, अपने पीछे एक बैकअप लेके चलना, yeah, ये बहुत जरूरी है कि कल को अगर आप कोरियोग्राफर नहीं होते हो तो मैं क्या बनूं, yeah, मैं yeah, क्या करूं। right, right, बिकॉज लाइफ बहुत बड़ी है, तो आपको सस्टेन रहना है, आगे आपकी hmm, शादी होगी, ये yeah, होगी,
अपना माँ बाप को देखना है, ये Yeah, देखना है, तो आपको very true. पूरा बहुत चीजें, तो आपको पूरी बैकअप चीज. लेके चलना बहुत जरूरी है। हाँ. और आजकल आज के कंपटीशन में Plan A and जो Plan आजकल B. Yeah. यस यस, Yes. ये So, एक्चुअली राइट वर्ड है। हाँ, right. So, प्लान ए प्लान बी। very true, इंदर, जो भी आपने बातें बोली हैं, जिस तरह से भी आपने मेहनत करके, you have reached the place where you are right now. We just hope you many more platforms of success. अभी आपने एक सीढ़ी, Yeah. आपने पहले कोरियोग्राफी की करी, फिर उसके बाद आप सिंगर बने, अब आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं. So what we can do is we can give you all lots of wishes. बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं जो आप तक अभी आपने अचीव किया है. And आने वाली जो भी चीजें हैं उसके लिए all the best. And we hope you will keep rocking Thank you very the much. way you are. And आपकी इस जो Thank you very much. बदमाश जो आपका वीडियो है, बदमाश वाला वीडियो, उसको भी और सक्सेस मिले और इसको मिलियंस क्रॉस करे ये जल्दी. ऐसी Thank you very much. मनोकामना Thank you है very much. हमारी. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑनलाइन. आप लाइव आके आपने इतनी अच्छी बातें करी. एंड फैंस, जो भी अभी इंदर ने आपको बोला, यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑल्सो ऑन आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर मीडिया प्रोडक्शन, या फिर मेरे इंस्टा हैंडल में. अपार्ट फ्रॉम दैट, इंदर विल बी कमिंग ऑनलाइन बाय टेकिंग वन सब्जेक्ट ईच. तो आप वेट करिएगा इंदर के मैसेज का. And till then, stay safe, stay home. That's all I can say. Yeah. Bye bye. Take care. God Yeah. bless. Yeah. Bye bye.